Hello class 10 students, how are you all? So बच्चों, this is the continuation part of the chapter number 9 heredity and evolution से this is the part 2. Today I am going to start the topic of rules for inheritance, that is Mendel's contribution. Okay, so this is the short notes जो मैंने बनाए हैं and आपको लास्ट में बच्चों इसका आपको ज़रूर से ज़रूर NCERT क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे एंड इन नोट्स के PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स तो आप मेरे वॉच कर ही रहे हैं, उस पर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच. स्टार्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आवर नॉलेज अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज बेस्ड अपॉन मेंडल्स वर्क. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है अभी तक, वो किसकी वजह से हुई है? मेंडल्स के काम की वजह से. He conducted his experiments over a period of 8 years on the common garden pea plant Pisum sativum. Okay, it is the pea plant. Pea plant का botanical name होता है Pisum sativum. बच्चों, मेंडल एक मॉन्क थे चर्च में. ओके, उन्होंने वहीं के गार्डन में ये एक्सपेरिमेंट किया था और 8 सालों तक उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया एंड आफ्टर हिज डेथ उनको ये सक्सेस प्राप्त हुई थी. बहुत टाइम बाद वो खुद अपने सामने ये इस कंट्रीब्यूशन का लाभ नहीं उठा पाए थे, ना उनको कोई अवार्ड मिला था एंड आफ्टर हिज डेथ उनको अवार्ड मिला था इस बारे में. सो ओके, इट्स अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मेंडल्स कंट्रीब्यूशन. ओके, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एज द एक्सपेरिमेंटल प्लांट. Why Mendel selected only the garden pea? So इसके बारे में ये है. Mendel observed the following advantages in selecting pea plant because first point लिखा है मैंने, garden pea plant has short life cycle, very short life cycle. अगर ट्री ग्रो करने जाते तो फिर वो many years तक रहता. ओके, इसलिए उन्होंने pea plant के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया. It shows several well defined easily detectable contrasting traits. जो उनको लगा कि वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर्स इसमें होते हैं, मे बी इसमें सेक्सुअली, मे बी इसमें रिप्रोडक्शन अच्छा हो. ओके, नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल पी फ्लावर. बाइसेक्सुअल होता था, हुआ था पी फ्लावर, इसलिए मैच्योर हो जाते थे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द सेम टाइम एंड कंप्लीट एनक्लोजर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ओके, Bipetals ensure self-pollination. Self-pollination यहाँ क्यों है? Because to maintain the purity of genes. Artificial cross-pollination. Self-pollination helps to maintain the purity of genes. Fourth point, artificial cross-pollination मतलब कि hybridization, जैसे कि removal of stamens and dusting the pistil of flowers with pollen grains of desired plants. फिफ्थ पॉइंट लिखा है 7 traits selected by Mendel were readily available in all pea plants. 7 traits अभी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से हैं जो कि मेंडल ने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट के द्वारा. पी प्लांट में पी प्लांट प्रोड्यूसेस सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वन जनरेशन. एक ही जनरेशन में पी प्लांट ने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस किए थे. Mendel performed separate crosses involving 1, 2 or 3 different contrasting characters. Okay, this is the main point कि garden pea क्यों select करा है Mendel ने अपने experiment में. Okay, so these are some points. Next देख लेते हैं. 3 crosses उन्होंने discover किए थे, that is monohybrid, dihybrid and trihybrid. So we will study today monohybrid cross and in my next video I will tell you about the dihybrid cross बच्चों. Okay, so monohybrid cross क्या होता है? जहाँ पर 1 पेयर का contrasting character से cross होता है, जैसे कि crosses between the parents which differ only 1 pair of contrasting characters are known as monohybrid cross. Mendel crossed 2 sets of pea plant with contrasting characters for height. One set of pea plant was above 6 feet and the other was short. मतलब कि एक उन्होंने tall plant लिया, एक उन्होंने short plant लिया, जो एक 6 feet का था, एक 1 foot का था. Mendel called these plants homozygous plants. Homozygous tall and homozygous dwarf. These plants represented the parent generation, that is P generation. मैंने यहाँ पे बच्चों आपको ये छोटा सा कॉलम बना के समझाया है. ओके, सो एक मिनट आप समझिए इसको. F1 जनरेशन में
टॉल प्लांट्स हमें मिले मोनोहाइब्रिड में। हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी मीन्स टॉल, homozygous tall plants, and small tt means homozygous dwarf plant। इसको बोलते हैं टॉल, इसको बोलते हैं डॉर्फ यानी कि शॉर्ट। ओके, अब इन दोनों को क्रॉस कराया बच्चों तो 50-50% कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हमें मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ओके, हमें ये मिल गया। F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? टॉल प्लांट्स मिले। जब यहाँ पर इनका डाइजेशन कराया तो हमको क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड हाउ इट गेट्स, कैसे आया ये मैं आपको एक प्यूबिट स्क्वायर से बना के दिखाती हूँ। ये आया कैसे ये बता रही हूँ मैं आपको। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ओके, ये हम लोगों ने दोनों कैरेक्टर्स ले लिए। ठीक है, अगर आप लोग ये छोटे से प्यूबिट स्क्वायर से समझ लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कैसे हमको मिला है। टी 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 टी, ये वाला इससे करा क्रॉस हुआ तो ये आया, ये इससे किया तो ये आया, एंड ये इससे किया तो ये आया। ओके, नाउ अब आप इसमें समझेंगे, ये यहाँ से क्रॉस हुआ, ये चीज़ आ गई, तो ये दोनों हैं टॉल यानी कि कैपिटल टी। ये क्योंकि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। कैरेक्टर में दो कैरेक्टर होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट में ऑलवेज कैपिटल टी एंड डॉर्फ में ऑलवेज स्मॉल टी। ये आप लोग समझ लीजिए। ये अब इसमें आप देखेंगे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, बट ये इसको डोमिनेंट कर जाएगा तो ये भी कैपिटल टी में ही आएगा। ओके, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी इधर, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये भी इसको ले जाएगा। तो 3 हमें कैपिटल टी में मिल जाते हैं, यानी कि 75% टॉल में और ओनली 1 स्मॉल में, तो 25% शॉर्ट में यानी डॉर्फ। ओके, ये समझ आया आपको। तो 3:1 का रेशो यहाँ से आया। सो अगर आप ऐसे ही सारे स्क्वायर बना के ये कर लेंगे तो आपको क्रॉस करने में ईजी रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। सो दे आर द 7 ट्रेट्स। लेंथ ऑफ द प्लांट टॉल एंड शॉर्ट यानी डॉर्फ। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, मतलब सीधे स्टैंडिंग में एक्सियल बोलते हैं, टर्मिनल में थोड़ी सी झुकी हुई। शेप ऑफ पॉड इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। शेप ऑफ सीड यानी कि राउंड या रिंकल्ड, झुर्रियों वाली। कलर ऑफ पॉड ग्रीन और येलो। कलर ऑफ कॉटिलिडन येलो या ग्रीन, एंड कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट और वाइट। सो दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड दीज आर द रेसेसिव कैरेक्टर। अगर ये दोनों साथ में हैं तो ये इसको ओवरअप कर जाता है बच्चों, इसको डोमिनेंट कर जाएगा रेसेसिव के ऊपर। इसलिए जो यहाँ हुआ है, टी टी था तो कैपिटल टी ही आया, मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ इधर, इधर भी डोमिनेंट, इधर भी डोमिनेंट। तो 75% डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज टॉल होमोजाइगोस प्लांट्स एंड 25% शॉर्ट यानी कि डॉर्फ प्लांट्स। तो ये हो गया 3:1 का रेशो। सो व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड इन दिस? Dwarf plants, 25% of F2 generation produced only dwarf plants, 25% of F2 plants, tall plants produce tall plants, and 50% tall plants produce tall and dwarf in the ratio of 3:1 on self-pollination. Self-pollination करना मतलब selfing hybridization करना, hybrid selfing करना, जो भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। सो आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो F1 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट्स यानी कि टॉल होमोजाइगस टॉल प्लांट्स मिले थे, और F2 जनरेशन में हमको 75% टॉल एंड 25% डॉर्फ। सो 3:1 का रेशो यहाँ आया, 3 यहाँ से आया। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड द मेंडल्स लॉ। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, जब तक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक भी से कर सकते हैं कॉपी, और यू कैन राइट फ्रॉम द वीडियो एज वेल। थैंक यू।